everyone, welcome to your PD and this is Shravya. So this video is for all the ones who are preparing for HPCL CBT for the position of JEO. Now you see, whenever you're targeting any examination, you need two things. One is consistency, the second is practice. Now every day I would be pouring a lot of content for you. The content which comprises of three main segments. The very first is the PYQs. Short, the questions we cannot skip. So all the PYQs related to that particular domain. Suppose today I'm going to discuss about idiom and phrases. What kind of PYQs were there of idiom and phrases in different branches? You will get a sample questions of that. Second, what are the practice questions that I need to do a lot of practice so that in the real examination I'm able to score good. Last but not the least, obviously there is a learning content too in this documentation which is going to help you in understanding the concepts in a better way. Like what are the basic 20-30 idioms and phrases I need to know. That is a short. So all these things are very important and this is what I am bringing for you every day with my documentations. I've already given you a quick analysis of the most important topics which can be popped up in your papers, and that too branch wise. A separate video is also there, guys. So there are particularly 12 main components which I told: spellings, one word, synonyms, idiom and phrases, fill in the blanks, direct, indirect, error spotting, jumbled, voice, RCs, antonyms and tenses. Today we are going to discuss about idioms and phrases. The very first which I told you is what kind of a questions did come up in the PYQs. Now you see where it was given a statement. जैसे आपको statement दी गई है, the first question, after her failure she expressed her feelings openly to her mother, right? When you are giving kind of a situation जहाँ पे आप अपने openly चीज़ों को बता रहे हो, that means cried for moon, read between lines, went cold turkey and poured out her heart. Now this is very important. आपको पता चल गया read between the lines भी नहीं है, cried for the moon negative नहीं है, went cold turkey भी नहीं है. It is poured out her heart because अब जब आप रो रहे हैं it is connecting with these kind of descriptions और आपको आंसर मिल गया. But what about the other three things? अदर थ्री के आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे? दैट इज वॉट इज द लर्निंग कंटेंट ऑल अबाउट, जिसमें आपको बहुत चीज़ें और समझनी पड़ती हैं. यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स. दैट इज देयर कैन बी अ हिंट कि इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी एनी अमंग्स दीज टू. अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, कैथरीन हैड नॉट प्लान एनीथिंग केयरफुली एंड सिंपली एक्टेड विदाउट प्रिपरेशन व्हेन शी डार्टेड अक्रॉस द मून होपिंग टू फाइंड द ग्राउस नेस्ट बिफोर बीइंग कॉट. अब क्या आ जाता है इसमें, यू नीड टू चेक कि पहले कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, कि वो बचना चाहती है, वो किसी के सामने नहीं आना चाहती है, प्रैक्टिस करना चाहती है. तो व्हाट कैन बी विंग्ड इट, दैट इज डिड समथिंग विदाउट प्रिपरेशन, प्लानिंग और प्रैक्टिस, जस्ट इम्प्रूविंग ऑन द स्पॉट. अब क्या आ सकता है, ये आप चीज़ें कैसे रिलाई कर सकते हैं? आप जब आप इंस्टिंक्ट्स पे जाते हैं, यू विंग ऑन सर्टन थिंग्स, दैट इज रेदर देन एनी काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन. अब हर चीज़ का आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, दैट इज आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे. बाइट द बुलेट क्या होता है, किसी भी डिफिकल्टी को बहुत अच्छे से फेस करना, दैट इज बाइट द बुलेट, दैट इज टू बी रेडी विद द चैलेंजेस. अगर मैं बोलती हूँ रॉक द बोल्ट क्या होता है, जब आप मीन्स टू एक प्रॉपर सिचुएशन चल रही है, नॉर्मलेंसी चल रही है, अभी एकदम से वॉर्स के बारे में पता चला, तो दैट इज काइंड ऑफ रॉकिंग द बोट, दैट इज सब कुछ नॉर्मल चल रहा है एंड समथिंग डिस्टर्बिंग हैपेंस, दैट इज टू रॉक द बोट. उसी तरह से आ जाता है आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कोई चीज़ ऐसी हो गई जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. मेनी ऑफ द पीपल had their trip towards Dubai, they were ready with it, लेकिन it was out of the blue, something unexpected occurred and the people just did the worst. We cannot even expect these things. So that is जो बिल्कुल unexpectation थी कि उनका कोई रोल भी नहीं था and they were involved in it. The company managed to stay afloat despite heavy losses. कई बार आपको समझ नहीं आता है तो आपको ये करना है कि कंपनी अफ्लॉट की मतलब चलती रही डिस्पाइट हैवी लॉसेस, मतलब बहुत लॉस, बहुत पैसे की कमी आई होगी लेकिन उन्होंने फ्लोट किया. कॉन्टेक्स्ट वाइज भी समझने की कोशिश करो. ग्रो की नहीं, कलैप्स अवॉइड किया, हाँ, क्योंकि अफ्लॉट रही मतलब चलती रही. स्टे अफ्लॉट का मतलब क्या आ गया, चलती रही आ गया, फंक्शनल रही. इसी तरह से आपके पास हर क्वेश्चंस आ जाते हैं. कॉट रेड हैंडेड, किसी को पकड़ लेना जब वो कोई गलती कर रहा है. ड्रॉ द लाइन कर दो भाई, बाउंड्री सेट कर दो, मुझे ड्रॉ द लाइन चाहिए, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए. टर्न अ ब्लाइंड आई, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, एंड डोंट टर्न द ब्लाइंड आई
towards these questions because these are important for you. तो turn a blind eye नहीं करना है. उसी तरह से at cross purposes मतलब जब आपके पास rivalry कुछ misunderstanding हो जाती है, गेट टू द पॉइंट, डायरेक्टली कट शॉर्ट करो, क्या कहना चाहते हो, कॉल इट अ डे, ओके बाय बाय, गुड बाय, आज के लिए इतना ही, दैट इज कॉल इट अ डे, खत्म करना अपनी एक्टिविटीज को. देन इज पास द बक, दैट इज टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी और को देना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास द बक. ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए मुझे सारी चीजें, रिटर्न में चाहिए मुझे सारी चीजें, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स मुझे अपना पेपर क्रैक करना है, दैट इज बाय हुक और बाय क्रुक. देन इज अंडर द वेदर, ओहो आजकल लोग बहुत अंडर द वेदर जा रहे हैं, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सीजन. नाउ यू सी यहाँ पे आपको मल्टीपल तरह के मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आप इमेजेस के बेसिस पे एट द 11th आवर, मतलब मत करना ऐसा कि एट द 11th आवर पढ़ रहे हो, एट द लास्ट पॉसिबल आवर सिचुएशन, हमें पहले से पढ़ना है. वी नीड टू मेक कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस एवरी डे. सो आपके पास ये इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए, उसके बाद मैंने आपको कुछ लर्निंग कंटेंट दिया है, ब्रेक द आइज, कि हाँ जी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लीजिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ हिडन बेनिफिट क्या है, पीस ऑफ केक बहुत ईजी है, ऑन क्लाउड 9 एक्सट्रीमली हैप्पी, इन द निक ऑफ टाइम जस्ट इन टाइम, एंड या इन द निक ऑफ द टाइम start preparing for the preparation with the best of the questions, with the best of the answers, and don't forget to download the documentation. इस तरह से everyday practice करोगे. आज मैं आपको इसका दे रही हूँ, कल tenses का, then it will be one word का I have already given you. I will be bringing fill in the blanks, बहुत important है, fill in the blanks मैं miss नहीं कर सकती. जब्बल्ड हो गया, RCs हो गया, antonyms हो गया, synonyms हो गया. तो एवरी डॉक्यूमेंट एक हैबिट लगाना कि रोज़ मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पढ़ना है. इट विल टेक 20-30 मिनट्स. रेफर टू द वीडियोज़. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आई जस्ट चेक इट आउट. और PYQs की वीडियो, यू विल बी गेटिंग द वीडियो ऑफ कंप्लीट वीक PYQs, वो ज़रूर देखना, प्रैक्टिस करना साथ साथ में क्वेश्चंस, एंड आई एम श्योरली सेइंग यू दिस थिंग, यू गोना स्कोर 17 out of 17. Just maintain the consistency and practice a lot. All the best guys, take care and have a good day. Bye bye.